अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, खुश आमदेद। क्रिकेट क्लिनिक के साथ आसिफ अहमद, मुदस्सिर मिर्जा, साइम कश्मीरी एक मरतबा फिर आपके साथ हाजिर हैं। आज जो हम आपके साथ बात करेंगे वो हमारे टेस्ट सीरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्ट वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज गुजरी है, एंड देन ब्रॉडली वील टॉक अबाउट द होल WTC साइकिल। the results are there in front of you, तो ज्यादा उस पर तो बात नहीं होगी, but we'll try to dig deep and just think about where we went wrong, and look forward to and give our kind of recommendations in terms of what needs to be done to take our test cricket forward, because obviously this has been a very disappointing cycle. Pakistan actually finished rock bottom, ninth. तो क्या उसकी रीजन थी? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द साउथ अफ्रीका, सॉरी द वेस्ट इंडीज सीरीज, और उसके बाद फिर अगर टाइम हुआ तो वील टॉक अबाउट अदर सीरीज एज वेल। वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। पहला जो था टेस्ट मैच वो 127 रन से हम जीते, और लगा कि भाई वही जो टेम्पलेट है हमारी इंग्लैंड के खिलाफ वो अब हमने पकड़ ली है। बट टेस्ट नंबर 2 के अंदर टॉस हारे, सेकेंड इनिंग्स हमें मिली, एंड देन स्क्रिप्ट completely changed. We were, at one stage we had West Indies down 38 for 7 in the first innings, and who would have thought कि a team जो 38 for 7 जिसको हमने किया है, वो ना सिर्फ हमें हराएगी बल्कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली 120 ऑड रन से हराएगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? आसिफ, आपसे स्टार्ट करते हैं। Assalamualaikum. Yeah, so look, the pinnacle of sport is cricket. The pinnacle of cricket is Test cricket. So for me, this is, it's the end of this is the most prolific season in the history of Pakistan. Well, in the most recent past, we played 9 Test matches, and so it's sad to finish on a sour note. So many matches come and go, and we may remember some things, but all of us in our minds, we remember certain jhalkiya, which are really, really they imprint themselves in our minds. So we always remember Shoaib Akhtar bowling Dravid and Tendulkar on consecutive balls. That's a great memory that we all have. We all remember when Pakistan beat India in Chennai, when Saqlain Mushtaq got Tendulkar out when they were on the verge of winning. Remember the Lord's Test match way back in, I think it was 92, when Wasim and Waqar won the match for us with the bat. I remember the 2016 Lord's Test match that we won, where Misbah was doing push-ups, and then who can forget when we won in the West Indies when Misbah and Yunus played their last Test match. There's so many memories that are there, and I bring that up because actually one of those matches today, I want to date ourselves, but this is the exact 19-year anniversary of one of those matches. Exactly on January 29th, 2006. Pakistan played a test match against India in Karachi National Stadium. And the very first over, Irfan Pathan took a hat trick. And Pakistan fell apart and was reduced to 39 for 6. And at that point, Kamran Akmal came in and he scored, I think it was probably his best century of his career. He scored 113. Somehow Pakistan came back and won that match. And Along and with Razak, it's right? If I'm not mistaken, Razak के Yes, तरफ से yes. And so it's a miracle to think 39 for 6 to come win a test match from there is amazing. And so not for us, but for many, many West Indies fans around the world who will look back on this team that was not even a B team, but a C team in foreign conditions in Pakistan after having just been beaten badly in the first test match. They were 54 for 8. And for them to come back against all odds and beat us, for me, this will be a dark spot. But for many West Indies fans, this is a great, great thing. It's for me disgraceful that we lose from that point. But I think it underlines a common theme that we've seen throughout the season, and we can talk about that a little bit later. But it just shows that there are some issues, systemic issues with Pakistan cricket, and we can talk about that later. One thing I want to add, I always give all the curses to any organizer who makes a 2 Test match series. What the hell are they thinking? This would have been perfectly set up. Pakistan won the first test, West Indies won the second test. The third test match should have been perfect. Look what happened against England. England scored 820 against us. They beat us. Then we won the second test. We had a deciding test match. You have to have a 3 Test match series. And the fact that this finishes 1-1, it just leaves yeah, a bad taste in the mouth, and it feels like it's unfinished. But 1-1 it on is the for same ground even, so we didn't even get to see a Bilkul. different Yeah, pitch or a different yeah, condition. yeah. सही सही। मिर्जा, आपकी तरफ चलते हैं। इससे पहले बात वही हो रही थी कि ये जो आपकी
ये जो फॉर्मूला निकला है अभी स्पिन ट्रैक्स का, आकिब जावेद का फॉर्मूला, राइट, सो इसके ऊपर बहस हुई कि यार ये फॉर्मूला ठीक है नहीं ठीक है। एटलीस्ट वी वर विनिंग, और 3 टेस्ट लगातार हम जीते। इसके बाद डज इट चेंज थिंग्स फॉर अस, और डू यू थिंक लाइक गोइंग फॉरवर्ड दिस इज द राइट अप्रोच, इट्स जस्ट दैट our batters did not play as well as they should? क्या कहेंगे इसके बारे में ओवरऑल? यार देखो ना, 4 में से 3 तो जीते ना गेम्स, उससे हम्म। पहले तो जीत नहीं रहे थे बिल्कुल भी। हम्म। और इसमें मेन वजह जो पाकिस्तान हैज बीन स्ट्रगलिंग बैटिंग का, दोनों ही खैर डिपार्टमेंट्स ऑफ थे, बैटिंग भी बॉलिंग भी। जब बांग्लादेश सीरीज हारे थे थोड़ी सी तेज विकेट बना के, फिर इंग्लैंड से पहले मैच में कितने 1,000 रन हम्म। खा लिए। हम्म। हाँ। इनसे फिर ये कम से कम साजिद और नुमान ने थोड़ा दो हम्म। 3 मैच जिताए ना। इस हम्म। मैच में भी बैटिंग थोड़ा करती, फॉर्म में होती या बैटिंग हम्म। बेहतर करती तो शायद कंपेरेटिव होते। और यार स्पिनर जितने भी खिलाएं, एक पेसर तगड़ा होना चाहिए, हम्म। जस्ट क्लीन अप द टेल। तो वो पेस का भी, ओवर भी इसको कम नहीं है। मैं कोई बात कर रहे थे, काशिफ को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं ही बोल्ड लाइक 6 ओवर्स उसने विकेट ली थी पहले ओवर में, फिर दूसरे गेम में शायद 4 ओवर ही कराए। उसको बॉल हम्म। तो दे देते, जब टेल एंडर्स इतना लंबा लंबा खेल रहे हैं, 100 रन हम्म। मार रहे हैं, तो फास्ट बॉलर को ट्राई तो करो। तो कैप्टनसी का भी थोड़ा हम्म। मसला था। बस मसला ये था कि इससे पहले 60 विकेट्स, लास्ट विकेट जो पाकिस्तान में थी, सब स्पिनर्स ने ली थी, तो एक तरह से रोल बिल्कुल आपके फास्ट बॉलर्स का खत्म ही हो गया हुआ था। मगर Yeah. एक दफा स्पिनर से जब 9, 10, 11 से 100 रन खाए, 120 रन खाए, उसी उतने रन से हारे हैं। कम से हम्म। कम 12 सेकंड इनिंग में तो उनको फास्ट बॉलर लगाते ना, फिर वही सही। स्पिनर किए और दे गॉट कंफर्टेबल। पिचेस का जहां तक मसला है यार, पिचेस वही ना, प्रॉब्लम है कि 1-2 सीरीज में मजा नहीं आता ना। इंडिया में भी सीरीज होती हैं, हम्म। मैंने नोट किया कि एक मैच तो ऐसा, वो 1-2 मैचेस ऐसे खेलते हैं कि मिट्टी उड़ रही होती है पहले दिन से। ये तो हम्म। फिर भी बेक्ड पिचेस थी ना, कि हम्म। बेक। इंडिया में तो खड्डे नजर आ रहे होते हैं कि वो पहले दिन से टूटी हुई पिच पे खिला देते हैं ना वो लोग, हम्म। और 2 दिन में मैच खत्म हो जाता है वहां पे भी। तो हम्म। थोड़ी सी बेहतर होनी कर सकते हैं कि जैसे कि पहले होता था कि दुबई वगैरह में भी, कि 3rd या 4th डे से थोड़ी हम्म। पिच खराब हो। मतलब ये नहीं कि पहले दिन से ही टर्न होना शुरू हो जाए। अगर आपकी, इफ वी कैन बैट देन इज फाइन, मगर हम हम्म। एक मैच तो हार गए, तो देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा उसको डायल डाउन करेंगे, आप हम्म. बैट्समैन ऐसे लाएं हु कैन हाँ. प्ले बेटर स्पिन। दूसरा जाहिर है, आप टॉस को तो नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते ना, तो वो एक, देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क कि अगर आप टॉस हार गए और आपको एंड में चेस करना पड़ गया, तो फिर आप क्या करोगे? वो इंग्लैंड के खिलाफ तो हम कर गए, जीत गए हम, डिस्पाइट वो चीज कि हमने, वो टारगेट ही इतना लास्ट इनिंग में हमारे 40 रन का था, तो हाँ. वो तो ऑब्वियसली वी गोना चेज दैट। बट इस केस के अंदर जब वी वर चेजिंग लाइक 250 रन ऑन दैट पिच, दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट एनीवे, राइट? सो वो है हमें Yeah, I देखना कि mean, अगर हम ये फॉर्मूला करें, तो फिर वी हैव टू अकाउंट फॉर द फैक्ट यार टॉस हम हार सकते हैं, तो डू वी हैव द बैटिंग well, डेप्थ देखो स्पिन के रिस्क, अंदर? साउथ अफ्रीका ने भी इसी तरह जीता है, पता है, फाइनल में पहुंच गए हैं। उनके यहाँ भी टेस्ट मैच ना, इंडिया के खिलाफ बहुत खराब पिच बनाई थी, मुझे याद है। हम्म। पाकिस्तान वाले मैच में यार अब्बास ने जो आउट किए हैं, वो टेस्ट पाक उल्टा वो बच गया, वरना तो टेस्ट पाकिस्तान जीत जाता ना। उस पे जो hmm. उन्होंने स्पाइसी विकेट थी, पे सेकंड टेस्ट में बैटिंग मरफ उन्होंने फ्लैट कर दी, क्योंकि अब हम्म। पाकिस्तान कुड हैव वॉन दैट गेम एक्चुअली, तो पहला वन, जो फर्स्ट वन Yeah. जो था। तो सही सही। Yeah, I think the failure is in this West Indies series, 100% is the batting, not the bowling. I mean, you look at West Indies played 4 innings. हम्म। See what they scored in 4 innings: 137, 123, 163, and 244. Now, you tell me at the beginning of the series, you take that 10 times out of 10. You know, the bowlers did their job. It's the हम्म। batsmen. And that's the most absolute disappointing thing. राइट। I was looking at, I mean, and we may talk about this a little bit, but the batting just was horrendous on every level, you know? राइट। राइट। नहीं, आई एग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा ये तो भी हमें देखना ना कि यार आप टेल को क्यों नहीं आप आउट कर सकते? आप 38 for 7 से आपके, इट्स ऑलमोस्ट क्रिमिनल टू थिंक अ टीम 38 to 7 वुड मेक 160, और जो उनका जो लास्ट टेल एंडर्स हैं, दे वुड मेक अ पार्टनरशिप ऑफ 60 रन। आई मीन ठीक है, आई आई एग्री विद यू कि ब्रॉडली स्पीकिंग बैटर्स को ही ब्लेम आप करोगे और थोड़ा कैप्टनसी को, बट क्या रीजन है आपके ख्याल से कि यार, एंड दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ थिंग, कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के टेस्ट के But अंदर this भी is दो this is विकेट the रह गई, हम thing. नहीं कर सके, उसको आप किस तरह Yeah. अड्रेस करेंगे? एंड व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ Just मेंटल थिंग या? just
It 100% meant this just in this season alone. I was going to bring this up later. Bangladesh was 26 for 6. We lost that match. South Africa was 99 for 8, chasing 148. We lost that match. Then you have, of course, right now, West Indies was 54 for 8, and we lost that match. This is, part of this is the mental approach or lack thereof. You have to have a killer instinct. We've seen even in white ball cricket, Pakistan has been in advantageous situations and then they've let it go. You have to have the killer instinct when your opponent is on the ground. You step on their neck. You watch the life. You watch every bit of competitive juice drain out of them. You don't let go and seek ab kya hoga. You have to absolutely kill them until there is no life left. And I think it is 100% mental. I think a lot of it is captaincy. A lot of it is relaxation. It all comes from the top. And, they go in South Africa. He was not unimaginative. He did not use the spinners when you think Rabada you could have bought his wicket. Here, against the West Indies, he did not, revert to the fast bowlers. You try different things. Tailenders are not they don't adapt well, right? They get set and they just do what they're set at doing. This is a mental thing, and it speaks to how weak we are as a team. And I think this permeates through all formats, how soft we are as a team, and it's embarrassing to say that because we are not a team. It's almost like we're a team that's afraid of losing rather than wanting to win. I don't know if Dasser agrees with that. I think it's a mental thing, and I think it's a huge indictment on Shan Masood, unfortunately. एक और आप भूल गए ऑस्ट्रेलिया 4 for 16. Yes. Yeah. वो तो कैच भी हमने ड्रॉप किया था और कॉम्बिनेशन है एक तो वीक बॉलिंग ओवरऑल जैसे खुर्रम शहजाद और मीर हमजा का ये नई बॉल अच्छी करते हैं फिर ठुस फिर 10 ओवर से कोई बल्कि मैं किसी से उस दिन कह रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो आमिर जमाल का जो लॉन्ग स्पेल था ना 15 पता नहीं 22 ओवर कराया था उसने एक मैच में उसके बाद से वो अनफिट हो गया खैर वो भी मगर वैसी बॉलिंग मुझे नहीं याद पिछले 10-15 साल में वकार वसीम के बाद मुझे तो याद नहीं आ रहा कि 10-15 साल में किसी ने इतनी लंबी बॉलिंग की हो और वो क्लासिकल टेस्ट बॉलिंग थी जो यू पुट अ फील्डर लेके शॉर्ट बॉल की मतलब बेंडिंग द बैक और उससे बेचारे से एक ही सीरीज में हुई तो टेस्ट बॉलिंग हमारी बिल्कुल ही बकवास है और इसीलिए हमारे दैट्स द रियलिटी फिर कैप्टनसी शान ऑस्ट्रेलिया में लगा गया चलो उसने जब स्टीव स्मिथ को आउट किया फिर एक पुल पे आउट करे थे मार्श को उसके बाद से शान ने कुछ नहीं किया तो अभी वनडे में थोड़ा बेहतर लगा कि जब रिजवान के साथ दे वर एबल टू गॉट एवरीबडी आउट आई थिंक आई नो आई एम गोइंग इनटू इट्स अबाउट टेस्ट मगर पहली दफा जो मैंने देखा है कि टीम को दे आर गेटिंग ऑल आउट इज इन वनडे कि वो किसी टीम को खेलने नहीं दे रहे थे एंड वी कैन सी aggressive captaincy से he's getting players out. Exactly. That the contrast you're showing is captaincy. Yeah. तो टेस्ट में यार फ्लॉज हैं स्पिनर साजिद नुमान अच्छे थे मगर फास्ट बॉलिंग का अभी भी मसला चल रहा है और कैप्टनसी का मसला आई थिंक दे दोज और बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म है वो तो ऑफ कोर्स तो प्रॉब्लम थी जब भी तो वी फिनिश एट द बॉटम राइट सही चलें अभी तो जो हो गया सो हो गया हमने एक पर्पस ये भी है कि हम आगे देखें और बात करें कि आगे हमें क्या करना है तो अब जो नेक्स्ट WTC का जो साइकिल है उसके फिक्सचर्स अनाउंस हो गए हैं हमारा पाकिस्तान का ये है दैट वी आर प्लेइंग न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका एट होम एंड वी प्लेइंग इंग्लैंड वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश अवे राइट सो अब उस तरह देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इन द सेंस वी कुड हैव हैड लाइक एन इवन वर्स अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ या खेल रहे होते ऑस्ट्रेलिया में या इस तरह बट स्टिल हमें सोचना पड़ेगा कि आप अवे में तो जाहिर है इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल वो तो डिपेंड करता है वो किस तरह पिचेस बनाते हैं बट हम होम के अंदर तो जाहिर है वी डिसाइड व्हाट स्ट्रैटेजी टू एम्प्लॉय तो क्या आपके ख्याल से ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है आकिब जावेद वाली स्ट्रैटेजी ये न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के अगेंस्ट काम कर सकेगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो चलो शायद कर जाए बट न्यूजीलैंड हैज एजाज पटेल एंड सैटनर और अभी हमने देखा है कि उन्होंने इंडिया को इंडिया में हराया है और श्रीलंका इज आल्सो यू नो स्पिन हैवी टीम क्या ख्याल है इसमें कुछ ट्वीक्स की जरूरत है या बस अब ये फॉर्मूला है तो चलो ठीक है एक दफा हो गया वेस्ट इंडीज को यू जस्ट एम्प्लॉय बैट्समैन हु कैन प्ले स्पिन बेटर एंड देन गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी गुड क्वेश्चन साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो
चल सकता है, क्योंकि दे डोंट प्ले देम वेल, मगर स्पिनर उनके पास भी हैं। मगर चलो साउथ अफ्रीका में चलो हो जाएगा। उनकी आई बैटिंग थिंक नहीं होती न्यूजीलैंड के अच्छी खिलाफ लेकिन। भी हो सकता है। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3-0 हरा गया था, उन्होंने स्पिन हाँ बनाए थे और हमारी जैसी पिचेस थी और उल्टा इंडिया हार गया था। दे हाँ, एजाज पटेल ने हमें यूएई में भी हराया हुआ है, आपको याद होगा 4 रन से हम हार गए थे, 4 रन रह गए थे और हमारी ऑल आउट हो गई थी। और बैटिंग भी अच्छी है यार। विलियमसन इज एक्चुअली, मैं स्टैट्स देख रहा था हम्म अभी तो साउथ का तो अभी का है ना कि वन ऑफ द हम्म हाईएस्ट। बल्कि एक वक्त ऐसा था कि 10 साल की जो हाईएस्ट एवरेज थी ना उसमें विलियमसन की सबसे अच्छी थी अगेंस्ट स्पिन। तो वो हम्म जो बाकी जो उनके जो कीपर है और जो 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 टेस्ट प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के, वो इंडिया में बड़ा अच्छा खेला है, इंडिया से बेहतर खेल रहे थे हम्म स्पिन। और हम्म श्रीलंका भी, दे हैव गुड स्पिनर्स और दे कैन बैट वेल। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट के आई गेस ट्राई करेंगे, मगर हम्म it might not be that easy to beat Sri Lanka especially. इंग्लैंड इंग्लैंड के अगेंस्ट तो हमें कुछ फास्ट बॉलर्स लेके जाने पड़ेंगे। यू थिंक अब्बास स्टिल हैज इट इन हिम टू प्ले अनदर ईयर और अनदर साइकिल, या I mean, um, we didn't know that he had it in him now when he did. I think the schedule you've outlined, it's actually an ideal opportunity for Pakistan to bounce back. You know, हम्म, first यार and अपॉर्चुनिटी तो इस दफा भी lowest of बड़ी अच्छी the थी table. हमारी, ऑन पेपर अपॉर्चुनिटी तो इस दफा भी बड़ी अच्छी थी अगर Huh. देखा जाए Right, but तो। we've found. I mean, somewhat of a formula. I think bottom line is we are in a batting crisis at the Right, test level. You right. know, Ab dekho. So I looked at this West Indies. I looked at the 4 innings that we played. I mean, look, understand, Babar Azam was dropped for lack of form. This हम्म was his return series in Pakistan after being dropped for lack of form. He scored 8, 5, 1, and 31, average of 11. I mean, हम्म this is our greatest batsman. I was looking, we only have 2 reliable batsmen, it seems, right now, Saud, Shakil, and Rizwan. Sean had 11, 52, 15, and 2, average of 20. Ghulam, yeah, Kamran Ghulam started with a century earlier this season, and then he just plays too cavalier. I mean, this is हम्म test cricket. You have to guard your wicket. He had 5, 27, 16, 19, average of 16. Alha, who I've always sung praises for, is horrible. 2, हम्म 14, 9, and 15, average of 10. So your 2 guys, Saud had 84, 2, 32, 13. Rizwan had 71, 2, 49, 25. Staying at the wicket, regardless of where you are, is a big thing. One of the things I think about, and red white ball cricket has ruined a little bit red ball cricket, the mentality of staying at the wicket. I think one of the most biggest, the biggest turning point for me in the South Africa series, for example, Katika, South Africa was chasing 148, but we had the opportunity to set them a huge total, a target. And Babar Azam and Saud Shakil had this great partnership going. Babar scored his 50, his first 50 in I yeah, think 2 years. to his wicket, yeah. Um, Immediately next ball, he holed out to deep point, an absolutely useless shot, unforced error. These are the concentration things. These are the moments where, these are pivotal moments that make or break the team. And so I think we've seen multiple examples of this throughout. Our bowling, you have to give credit. Look, when we had different conditions in Pakistan, Sajid Numan stood up, even Abrar stood up and did the job. South Africa, difficult pitches, Abbas went and did the job. So our bowlers are doing the job. It's the batsmen on all formats, not all formats, and all conditions are failing us. And Right, that's what right. Saim Ayub, I mean, we are so dependent on one batsman, and that can't be Yeah, the case. of course. So I एक think एक that's और the we really need to identify batsmen. एक और स्टार्ट। Babar scored 350 in South Africa, right? Huh, he did. But this is a home series, his home comeback. उसका वो स्कोर नहीं कर रहा है यार घर पे बिल्कुल भी। अभी ऑस्ट्रेलिया, खैर वो ओडीआई थे, मगर ये ही वाज स्कोरिंग साउथ अफ्रीका में। No, he looked good in white ball. He looked great. It looks like he's still comfortable on like against pace और quality pacers पे अच्छी विकेट्स में he's fine. जहाँ स्पिनर आता है और जहाँ पे पार्ट टाइमर बॉलर आते हैं तो he just throws out his wicket. I don't Yeah, know. I mean, Warren, Moti, who are these guys? I mean, they're getting him. नहीं, आपको एक स्टार्टलिंग स्टेटिस्टिक ये है, वर्ल्ड Huh. कप वन स्टार्टलिंग स्टेटिस्टिक कि आपको पता है कि पूरे दोनों टीम्स का कंबाइंड बेस्ट बैटिंग एवरेज किसकी है? इंटरनेशनल वॉरेकन की, नहीं इसके अंदर। Warwick. वॉरेकन Yeah, हैज, ही इज द बेस्ट बैट, ही इज अ टेल एंडर, ही इज नंबर 10 and he imagine. has the best batting average among both the teams. I mean that टेक्निकली That's speaks to कि यार किस तरह की बैटिंग हुई है। चले, ये तो है इसमें इसमें टू सम एक्सटेंट आप फिर भी कह सकते हैं साउथ शकील, टू सम एक्सटेंट रिजवान, टू yeah. सम एक्सटेंट, बट रिजवान बाकी टीम आगा आगा कर रहा था, मुझे नहीं पता फिर आगा भी थोड़ा इस सीरीज में नहीं Um, कर
अच्छा, what future do you see for our captain? शान मसूद का क्या आप देखते हैं फ्यूचर एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन? उसको, वो आपने सुना ही होगा कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक बड़ा एक काइंड ऑफ ऑफेंसिव सा उसको एक क्वेश्चन भी हाँ पूछा हाँ गया कि जी आप खुद छोड़े हैं या इस तरह का। आई मीन, क्रेडिट टू हिम कि उसने अच्छा हैंडल किया और जरा शट अप कॉल दे दी। बट कंसर्न्स तो हैं, आई मीन जायज कंसर्न्स तो हैं फैंस की। तो व्हाट डू यू थिंक? एक इनिंग उसकी डिसेंट जा रही थी, वो रन आउट हो गया उसके बाद, तो क्या देख रहे हाँ हैं आप उसके अंदर? देखो उसमें कैप्टनसी तो गई उसकी, ठीक है ना। अब शरीफ आदमी है, वो अननेसेसरी क्वेश्चन था, पीसीबी ने बनाया उसे कैप्टन। और हम्म। दूसरी बात, ये कोई भी कैप्टन होता ना हो, तकरीबन 19-20 यही होता है टीम, क्योंकि हम्म। इज रीबिल्डिंग अगेन। तो यार कैप्टनसी तो नहीं उसकी, मुझे आई एम श्योर कि ही इज नॉट गोना कंटिन्यू एज अ कैप्टन। रिजवान को वापस लाएंगे आप? रिजवान ऑल फॉर्मेट बन। रिजवान तो प्लेयर ही टेस्ट का है यार, उसको कोई सेंस ही नहीं है। आप चलो ओडीआई ठीक है, तो जब रिजवान इतनी अच्छी कर रहा है कैप्टनसी, वी कैन सी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर ऑप्शन। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि रिजवान को बना दें टेस्ट का यार। रन भी हम्म। कर रहा है, कैप्टन भी अच्छा है, और क्या चाहिए। सो सवाल ये है मुदस्सर कि अगर इफ यू टेक द कैप्टनसी फ्रॉम शान, फिर उसकी जगह बनती है या नहीं इन दिस टीम? इट्स अ गुड क्वेश्चन। और प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आप मुझसे पूछें, इस उसने अभी भी उसकी एवरेज जो जो परफॉर्मेंस है ना, इट्स बाकी टीम की भी इतनी फजूल है ना, आई इसलिए नो। रिप्लेसमेंट नहीं है ना, या तो आप रिप्लेसमेंट बताओ नहीं कि यार नहीं, इसकी जगह रिप्लेसमेंट इसको ले आए। बेशुमार है यार। आई तो मीन, लेकिन आप सो बात नहीं नहीं, मैं लेट मी फिनिश। हाँ, गो अहेड। आप अगर उसकी एज ए कैप्टन, इसकी अगर एवरेज देखो ना, वो मिड थर्टीज में है। उसकी कैरियर एवरेज तो ट्वेंटीज में थी आई मीन ना। जस्ट 30.12, हाँ। साउथ अफ्रीका में, आप बताओ किस तरह बिठाओगे? साउथ अफ्रीका में ही स्कोर्ड 145, या ठीक। या और अच्छे ये, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट ही स्कोर्ड 150, हाईएस्ट 100 आफ्टर मिसबा। वेस्ट इंडीज में जो पहला टेस्ट जीते हैं, उसकी सेकंड इनिंग की जो 50 थे ना, 57 रन आउट, वो काफी हाँ। क्रूशियल। अगर आप उसे निकाल दो तो वो हारे आते। चलो अगर आप, तो इस पे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप इसको निकालते हो तो साइम अनफिट है अभी, और अब्दुल्ला नहीं शफीक, बट 8 महीने के बाद वो तो फिट होगा ना। इससे भी हल्का है। तो करंट फॉर्म फिर कौन है ओपनर आपके पास? आई थिंक इट्स अ टॉस ऑफ कोइन। मेरा ख्याल से अगर आप मुझसे पूछो, ही कैन कंटिन्यू एज अ ओपनर फॉर अनदर सीरीज और टू टू सी के ही नीड्स टू बी मोर कंसिस्टेंट। कैप्टनसी ही इज डन, दैट्स व्हाट आई थिंक। हम्म। So if the next series was next month, I would agree with you. But we don't play Test cricket for another 8 months. Shan Masood is more than 35 years old. He's going to be 30, close to 36 by the time the next test starts. So, we know that, Abdullah Shafiq had all those ducks and everything, TK fine, whatever. He may find this rediscovers for him. You know that Imam ul Haq is still there. There are other, this Abu Huraira who has been so successful in all these side matches. He's an opener, by nature. So I think 8 months down the road, there's no current form, right? It's everyone's starting from with a fresh slate. TK Sean has played some good innings. There's no question about that. I just think again, Test cricket is you guard your wicket, you protect your wicket, and he's just not a serious batsman. He throws his wicket away. He's rarely out on a good ball. It's usually a self-inflicted dismissal and injury. It's just he's too carefree about his wicket, I feel like. And Right. when that happens at the top level, the captain, it permeates through to everybody else. Kamran Ghulam throws his wicket away. They all ऑल follow the से captain. They सारे all यही follow the captain. तो एक थोड़ा सा मैं डेवल्स एडवोकेट और थोड़ा सा उसके सपोर्ट में बात करूंगा कि कई, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग कि वो अपने विकेट के ऊपर वो प्राइस नहीं सेट करता। एट द सेम टाइम कई दफा हमने ये भी देखा है कि हमारी टीम जो है ना बहुत बॉक डाउन हो जाती है, रन रेट का बिल्कुल ही वो ख्याल नहीं करती। तो हमने But कुछ he's ऐसी positive. इनिंग्स भी उसकी देखी हैं कि ही हैज बीन पॉजिटिव, और उसके पॉजिटिव होने की वजह से हमने एक डिसेंट स्कोर। तो आई थिंक देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन बीइंग टू टिमिड एंड जस्ट ब्लॉक एंड बीइंग टू अग्रेसिव इन Yeah. द थ्रोइंग योर विकेट। I don't think he's found that balance. I agree with you because he's always trying to be aggressive, but sometimes you can be too aggressive, right? And we've seen him. How many times we've seen in Australia wafting outside the off stump when you don't have any runs or anything. There's या some brain power that रिवर्स goes with स्वीप that. की And he's कोशिश such a कर रहा है, smart रिवर्स guy. स्वीप में एलबीडब्ल्यू हो रहा है। Bilkul, bilkul. He's so well spoken. I really root for him. I felt bad when the journalist asked a question. I want him to succeed, but the body of work that's there, he's had a good run of 9 tests, but the mindset. Now, look, I still think that they may keep him as captain because the turnaround.
आप देखते हो, you look and say, all right, we are the lowest of the world, WTC table and everything. If you look in totality, remember after we lost that first test to England, we sat here and said, how many test matches do you think we're going to win this season, right? We said, shayad ek, shayad do. We won 3 test matches. We beat Yeah. England and we split a series with the West Indies. We It should have won wasn't the last one. I mean, to be all right, honesty, right. 38 But for 7. within the season itself, we saw a turnaround Yeah. for which Sean does get some credit. So I want him to be dropped because I just think he's not the future. And I think there are flaws. I just really with us in the sense that I wish Rizwan would be captain. I don't think they're going to do it. I think they're going to keep Sean until he decides to retire, which is not the future way. I don't think Rizwan ko hona chahiye. There's such a clear distinction how much Rizwan is better. लेट्स सी क्या होता है, मगर हो सकता है रिजवान को बना दें। बल्कि एक मजेदार र्यूमर ये भी चल रहा है कि खैर इट्स टू लेट ना, उसका जो बेस्ट फॉर्मेट है शान का, सबको पूरी जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं वो ओडीआई है। वो T20 कप भी खिला दिया उसको टेस्ट भी खिला दिए, भाई उसको वनडे तो खिला देते हैं। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसको वो क्योंकि अभी साइन नहीं इंजमाम, मुझे लगता है वो क्या नाम है आई गेस इमाम मुझे लगता है कोई लंबा काम किया है वो ब्लैक उसके वापस आने के लिए। आई डोंट नो क्या चक्कर चलेगा, तो हो सकता है शान ही खेल रहा हो। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। That's fine. We'll see how he does. अच्छा, चले आप नंबर देना चाहेंगे टीम को, या शुड वी जस्ट टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स? सो एक ऑप्शन ये है कि I think just the मोटी मोटी बात करते हैं। चले मोटी बात, एक ये चीज भी है, एक क्वेश्चन जो एक आ रहा है बार बार लोगों के जहन में, फैंस आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, कि यार नोमान और साजिद जो इतना रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कंसिस्टेंटली दे रहे हैं। बाय द वे नोमान आपने सुना होगा कि टॉप 5 में अब आ गया है वो, माशाल्लाह, रैंकिंग में टेस्ट के अंदर। सो दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। बट क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर वो इतने इफेक्टिव हैं, आर दे रियली जस्ट वन ट्रिक पोनी काइंड ऑफ प्लेयर्स, कि वो सिर्फ आपके टेस्ट के अंदर ही हैं, या उनको हम वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, स्पेशली ओडीआई के अंदर भी ट्राई किया जा सकता है? साजिद फॉर एग्जांपल बैटिंग भी कर लेता है, छक्के भी मार लेता है, तो क्या एक केस बनता है कि उनको ट्राई किया जाए? आई मीन आई वुड लाइक टू एटलीस्ट सी व्हाट दे डू। आई वुड एक्चुअली इवन हैव लाइक कि अगर उनको कोई पीएसएल की टीम जो है पिक कर लेती, तो देखते हैं कि T20 में कैसे परफॉर्म करते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नो, आई एग्री, पीएसएल में ज्यादती है, उसने स्टेटमेंट भी दे दिया है। आई थिंक उसको पीएसएल में वो किसी स्क्वाड में होना चाहिए था। बेशक नहीं खिलाते उसको सारे गेम, वो ही इज अग्रेसिव प्लेयर, वो छक्के भी की बात कर रहे हैं हम। साजिद की मतलब एज भी यंग है थोड़ा, फील्डर अच्छा है, छक्के वक्के मार रहा है। तो पाकिस्तान कप में भी इसका यही किया था, जो अभी ओडीआई नेशनल चैंपियंस कप हुआ था, एक मैच खेला शायद, ही वाज मैन ऑफ द मैच। तो उसको खिलाना चाहिए। आई एग्री, पीएसएल में भी खिलाएं, और कोई वो नहीं है, कभी ओडीआई में भी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही थी, कोई स्पिन विकेट बन जाती, तो इज गेटिंग लेट के उसको खिला सकते हैं कि ट्राई करने के लिए। और फॉरेन टूर्स पे भी साथ लेके जाएं, राइट? एक हमने आई थिंक वी मिस्ड अ ट्रिक कि हमने उसको नहीं लेकर गए, जो हमने साउथ अफ्रीका में एटलीस्ट एक स्पिनर तो रखना चाहिए यार आपका। आई मीन उन्होंने तो रखा हुआ था अपने उसको। दो हमने मजाक बनाया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर्स को। ऑस्ट्रेलिया में ये हाल है, अभी श्रीलंका गए ना, तो आई वाज सरप्राइज, जॉश इंग्लिश खेल रहा है। तो जॉर्ज इंग्लिश जो है वो उनका विकेट कीपर है T20 और ओडीआई का, और एलेक्स कैरी वैसे ही रन करता है। तो इसका मुझे जो सिग्नल लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, उसकी डोमेस्टिक एवरेज 30s में है। ही इज अ गुड वाइट बॉल प्लेयर। तो कहने का मकसद ये कि टेस्ट प्लेयर जिस तरह हमने जाया किए थे ना एक जमाने में, जो धक्के मार के निकाले हैं 4-5 प्लेयर, फवाद आलम हो गया आपका असद शफीक हो गया, फवाद आलम, ये कि देखो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन करते हैं। टेस्ट प्लेयर आपको नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, आपको वो T20 प्लेयर मिल जाएगा जो अच्छा टेस्ट प्लेयर होता है। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम निकालो ना, पिछले 10-15 साल से 7 या 8 खिलाड़ी वही खेलते हैं, स्टीव स्मिथ, ख्वाजा। जो ये टेस्ट क्रिकेट मजाक नहीं है कि आपने 1-2 टेस्ट खिलाया फिर निकाल लिया, फिर तीसरे को लिया फिर निकाल दिया। हमने लेकिन अब इंडिया के केस के अंदर तो आप जो रोहित और कोहली का तो एक दूसरी एक्सट्रीम चली गई है ना, कि इतना खिला खिला के अब वो बात आ रही है कि यार but I think Hane, Joe, point up, look, we talk about where we were, how we performed this year in the test season. Think about where we would be if there was no Sajid and no Naman. I mean, they single-handedly put Pakistan on their backs, and
And I feel like they've not been given the kind of recognition they deserve. They should be rewarded for that. Even as a token gesture, PSL may select them. I agree 100%. Sajid should absolutely be tried in white ball cricket. He's aggressive. He infuses energy into the team. He gets everybody else excited. He's a good batsman. He's a very good wicket-taking bowler. To me, it's madness to not give him a shot. Abhi try series aane wala hai. They should give him a shot and see. What worst case scenario doesn't work. It's not for lack of trying. Right, You know, right. it's just it doesn't make sense to me. These guys should be treasured and kept taken care of and need to be rewarded accordingly. अब जिस तरह अबरार का केस है, अबरार का भी जो है, हाँ, कहते रहे कि उसको आप व्हाइट बॉल में ट्राई करो, तो वो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से टेस्ट के अंदर ट्राई किया, उसने ही डिड परफॉर्म वेल हाँ, अगेंस्ट इंग्लैंड, बट वर्ल्ड कप के अंदर नहीं लेकर गए उसको, हम मैच ही नहीं दिया, शादाब खेलता रहा, और अब वो आया है तो उसने शो किया है कि भी वो व्हाइट बॉल में भी yeah, बिलोंग करता है। तो आप ब्रांड नहीं कर सकते एक प्लेयर को कि यार ये बस टेस्ट का ही प्लेयर है, ये टेस्ट का ही बॉलर है। आप ट्राई तो yeah, करो, ज्यादा नहीं चलेगा तो फिर yeah. और कोई पार्टिंग थॉट्स, क्या बात करना चाहेंगे इसके बारे में गोइंग फॉरवर्ड, डू यू सी एनी पॉजिटिव्स, if not, sort of, where do we go from here, I क्या think आपके पास एडवाइस? जो ओवरऑल इजी टू ब्लेम के टेस्ट क्रिकेट इग्नोर हो रही है। आई थिंक क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है बिटवीन T20 लीग, जे IPL, PSL। इस वक्त एक दफा मैंने गिना 4 या 5 लीग चल रही थी, साउथ अफ्रीकन लीग, बांग्लादेशी लीग, हम्म, मैं कहा यार हु कैन BBL, 4 or 5 लीग्स ऑन द सेम टाइम। तो right, लीग हो गई, T20 हो गई, टेस्ट ना की वो बात नहीं रह गई अभी। बल्कि आज शायद आया कि श्रीलंका को शायद 4 टेस्ट मैच मिल रहे हैं, कुछ समथिंग रियली रिडिकुलस। तो इस तरह तो Right. टेस्ट खत्म हो रही है, और वो जो बिग थ्री हैं ये आपस में खेल रहे हैं। इनके Yeah. इंग्लैंड 22 टेस्ट मैच खेल रहा है, कोई पाकिस्तान 7-8 खेल रहा है। तो दिस इज रॉन्ग ट्रेंड। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट कैन कंटिन्यू। इट इज द बेस्ट mm, फॉर्मेट, मगर वो जो कहते हैं ना, जो इक्वालिटी है वो खत्म होती जा रही है क्रिकेट में। T20 हाँ, प्रमोट हो रहा है, एसोसिएट आप भरे जा रहे हो, और टेस्ट की जो 6-7 टीमें थी इज गोइंग डाउनहिल। हमने बल्कि उस दिन मैं देख रहा था, क्वालिटी भी वो टेस्ट की नजर नहीं आ रही ओवरऑल, बिग थ्री में भी। अब इंडिया की आप बैटिंग देख लो, हम्म, या हाँ, yeah, I I think, think हाँ, जब वो नहीं, मैं वो कहता कि लोगों को अटेंशन स्पैन भी जो है ना, वो आई थिंक ओवरऑल, अब ये जो टिकटॉक का जमाना है, कि एक वक्त था लोग बड़े बड़े उसमें सीरियल्स देखते थे, अब जो yeah, हमारा जो अटेंशन स्पैन भी है वो हो गया है, यार क्विक चीज, हमें क्विक एंटरटेनमेंट मिले, तो वो भी एक I आई think थिंक the एक बड़ा players think that कंट्रीब्यूटर है। too. That's why they cannot play long innings. या Yeah, I think overall, if you just look at the Pakistan Test season in its totality, we had 9 Test matches in the season. For me, I would rather watch this 10 times out of 10 than white ball cricket. But that's just me. If you look at the numbers, if you look at the results and say, "Wow, Pakistan finished at the bottom of the table," it's very easy to get depressed and say it's rock bottom. I think we hit rock bottom earlier in the season. The fact that within the season, on the go, we figured out how to turn things around. We found some successful bowlers. We found our Abbas was rediscovered. Our catching overall was good. We know that there were missed opportunities that in future we could take advantage of, and results could be very different. We have a schedule that is favorable to us. From a Test cricket standpoint, look, white ball, we know, inshallah, we're going to be good and we'll always be competitive. But I think from a Test cricket standpoint, it's easy to get depressed, but I think there are many reasons for optimism to think in the next cycle we will definitely not be last, but I think there's a good chance we can be in the top half as long as we take the opportunities that are presented to us and we take advantage of our strengths. And I think we've seen enough signs within this season to have some belief that we'll Right. get there. नहीं बिल्कुल, और रॉक बॉटम आई थिंक वो था जब हम बांग्लादेश से 2-0 Bangladesh, आ रहे थे। yeah, उसके बाद से yeah, अगर आप देखें तो वी वर वेरी कंपेटिटिव अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, स्पेशली इन द yeah, फर्स्ट टेस्ट। yeah, इंग्लैंड को हमने हराया, विच वाज रिमार्केबल। और इस टेस्ट के yeah, अंदर भी आई आई होप इस सीरीज में वेस्ट इंडीज वी हैड अनदर टेस्ट, लास्ट वन, टू सी yeah. वेयर वी स्टूड अच्छा, के Hmm. पहले वी फिनिश 6th, देन वी फिनिश 7th, एंड Yeah, तो इवन टेस्ट क्रिकेट नीचे गाने शुरू हुई है इवन सरफराज के होते हुए। इनफैक्ट टेस्ट हारना शुरू हो गए थे तब सरफराज को चेंज करने की बात पहले शुरू हुई थी। वो रन भी नहीं कर रहे थे टेस्ट में। और जब यूएई से जब से निकले, जब से तो हम जीत ही नहीं रहे ना, जब से वापस क्रिकेट पाकिस्तान आई है। जब बाबर, फिर नवीज और बाबर थे उस जमाने में, तो
hope we might see a turnaround. Let's hope यार next. यार बाय द वे जो हम नाइन्थ आए हैं, एक चीज हम बोल रहे हैं कि उसमें एक रीजन हमारे पेनल्टी पॉइंट्स भी हैं। वो अगर हमें पेनल्टी पॉइंट्स ना मिलते तो हम सेवंथ होते बाय द वे। जस्ट वो चीज कि ये भी हमें एक चीज देखनी है कि हम पेनल्टी पॉइंट्स कैसे, जो स्लो ओवर रेट और इसके जो मसाइल की वजह से हमें 3-4 टेस्ट मैचेस के अंदर हमें नेगेटिव मिला। ना सिर्फ हम हारे हैं बल्कि हमें पेनल्टीज भी पड़ी हैं। तो उस चीज Which को all भी थोड़ा happened देखना पड़ेगा। before the spinners came on, right? Yeah. या It स्पिनर्स, first happened the हाँ season दिस इज beginning. जब हमने साउथ अफ्रीका में भी रिसेंटली हमें पेनल्टी पॉइंट्स मिले हैं। उससे अच्छा, पहले भी जब हम स्पिनर्स को नहीं खिला रहे थे तो हमें तो या उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि यार उसको हम किस तरह अवॉइड करते हैं, so बिकॉज that too falls on the captain, right? I या mean, there've या got to be consequences, I think, you राइट know? राइट राइट। बट अगर आपने स्पिनर्स खिलाए ही नहीं है, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में खेल रहे हैं और आपके पास सारे सीमर्स हैं, तो क्या कर सकते हैं? आप रनअप तो छोटा नहीं करेगा ना बंदा आपके लिए। हाँ, चले जी, होप कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। ऑल्सो विश के कुछ थोड़ी पॉजिटिव न्यूज होती है आपके साथ शेयर करने के लिए, बट नेवरदलेस वी आर हेयर फॉर द लॉन्ग टर्म। इस अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, एंड वी होप कि हमारी जो टीम है, हमारी मैनेजमेंट है, अपनी मिस्टेक से सीखे और जो नेक्स्ट WTC साइकिल है वो इस WTC साइकिल से बेहतर हो पाकिस्तान के लिए। and we move on to white ball cricket now. Yeah. एग्जैक्टली। Tri Nation coming in like Tri how many? Nation Series, Champions Trophy, and Yeah, that too lots. in Pakistan. तो एक्साइटिंग मंथ कमिंग अप। तो इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज आपने देखा ही है पाकिस्तान की फॉर्म अच्छी जा रही है उसमें। अनफॉर्चुनेटली वी हैड अ बिग सेटबैक साइम अयूब की इंजरी की फॉर्म में, बट नेवरदलेस आई थिंक वी स्टिल हैव अ वेरी गुड टीम। फखर जमान विल प्रॉब्ली कम बैक। सो उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। ओके जी, Yes, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान Allah जिंदाबाद। Hafiz. Still long, eh?